Good afternoon, everyone. So, illustration number 6, page number 196. What is given in the illustration number 6? Ajay, Sanjay, and Vijay were the partners sharing profits and losses in the ratio of their capitals. So, they are sharing profit losses in the ratio of their capitals, which is 60,000, 40,000, 20,000. That is 3 is to 2 is to 1. 3 is to 2 is to 1. So, their old ratio is 3 is to 2 is to 1. Again, done then. Creditors are outstanding salary, reserve fund. We will distribute reserve fund among all partners in their old ratio. ठीक है आगे. Land and building, motor lorry, debtors, less RDD, furniture and bank balance. आगे. विजय की डेथ हो गई on 1st August 2019. बैलेंस शीट कब की है? 31st March 19 की बैलेंस शीट है. 31st March 19 की बैलेंस शीट है एंड विजय की डेथ हो गई 1st August 19. सो कितने मंथ्स के बाद हुई है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बिगिनिंग में डेथ हुई तो अगस्त को मेजर नहीं करना है, काउंट नहीं करना है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आफ्टर 4 months. So Ajay की डेथ हुई after 4 months and the following adjustments were made. They have given you the adjustment. Assets to be revalued as under: land and building 88,000, motor lorry 36,000, furniture 34,000. कोई इश्यू है आपको? Good. All debtors are good. कोई इश्यू नहीं. All debtors are good. Means RDD is no longer required. मतलब ही RDD is no longer required. No longer required. RDD is no longer required. Again, goodwill of the firm valued at 2 times. क्या लिखा है? Goodwill of the firm is valued at 2 times. Multiply by 2. The average profit of the last 4 years. So last 4 years के profit ले लो, उनका एवरेज निकालो, मल्टीप्लाई बाय 2 is the goodwill of the firm. Vijay's share of the profit to be calculated on the basis of average profit of the last 3 years. Vijay's share in the profit. So Vijay की डेथ हुई है. Vijay is outgoing partner. He was a partner for 4 months. He was a partner for 4 months in the current year. 1920 is the current year. 1920 में उसकी डेथ हुई है आफ्टर 4 months. तो उसको 4 months का जो प्रॉफिट देना है, उस प्रॉफिट के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हमें उसको जो 4 months का प्रॉफिट देना है, ठीक है, उस प्रॉफिट के लिए, राइट, हमें क्या बोला उन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. सो लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट निकालो, राइट, लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट निकालो, मल्टी, लाइक वो जो भी आएगा दैट इज फॉर द एंटायर ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए ईयर ऑन एन एवरेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4/12. 4/12 क्यों? बिकॉज ही वॉज ए पार्टनर फॉर 4 months. तो हम प्रपोज्ड प्रॉफिट निकालेंगे फॉर 4 months एंड फिर उसमें विजय का जो भी शेयर रहेगा हम वो मल्टीप्लाई बाय विजय शेयर करेंगे तो हमें विजय का शेयर इन द प्रॉफिट पता चलेगा. ठीक है, विजय का शेयर इन द प्रॉफिट पता चलेगा. आगे देयरफॉर ध्यान देना, ठीक है. प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years वर, क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर 4 years वर: ईयर 1 12,000, ईयर 2 24,000, ईयर 3 14,000 एंड ईयर 4 22,000. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ईयर 1 इज द सबसे पुराना वाला एंड ईयर 4 इज द एकदम रिसेंट वाला. ठीक है, आगे. Prepare Vijay's capital account showing amount payable to his executor. Give working of Vijay's share of goodwill and profits up to the date of his death. Correct start? Yes, everyone. Question number 6. और मैं यहाँ पे आपको कैपिटल रिपेमेंट भी सिखाऊंगा. इस क्वेश्चन में मैं कैपिटल रिपेमेंट भी सिखाऊंगा.
क्वेश्चन नंबर 6, जो भी पेज नंबर ही निकालो, बोलो पेज नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है? यस एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, पेज नंबर इज 197, गुड। 197 मेरे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। 197, लेट मी शेयर द स्क्रीन, थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, चलो कैपिटल अकाउंट निकालो और स्टार्ट करो वर्किंग नोट करना। यस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, विजयस कैपिटल अकाउंट, विजयस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। विजयस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल निकालो। ओके, थोड़ा शेयरिंग में प्रॉब्लम है, ओके। होपफुली आपको इश्यू नहीं आएगा, ध्यान देना, ठीक है। देखते हैं, विजयस कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट,
वर्किंग नोट. First, calculation of Vijay share in goodwill. Calculation of Vijay share in goodwill. Goodwill is equal to average profit of 4 years. Average profit of 4 years. Of 4 years. Average profit of 4 years multiply by 2 times. Multiply by 2 करो. Multiply by 2. Average profit of 4 years multiply by 2. ठीक है. Therefore, average profit of last 4 years. They have given you profits of the last 4 years. चलो उसको बेस लेके करना है. क्वेश्चन में दिया है आपको एडजस्टमेंट में. लास्ट वाले एडजस्टमेंट में लिखा है 12,000 प्लस 24,000. 12,000 प्लस 24,000 प्लस 14,000 प्लस 22,000 डिवाइड बाय 4. डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, बोलो कितना मल्टीप्लाई बाय 2. टोटल कितना आ गया रे? 12 प्लस 24 36, 36 प्लस 14 50, 50 प्लस 22 72, 72,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2. 72,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो यू विल गेट आई थिंक 18,000. यू विल गेट 18,000. 18,000 एवरेज प्रॉफिट 18,000 रहेंगे शायद से. एवरेज प्रॉफिट इज 18,000 multiply by 2. 36,000 is capital. 36,000 is goodwill. 36,000 is goodwill. Therefore, Vijay share. Vijay share in goodwill. 36,000 is goodwill. Vijay का share. Vijay is the third partner. 36,000 में Vijay का share 1/6. क्या रेशियो है? 3:2:1. 3:2:1. सो 1/6. 6,000. इसकी एंट्री लिखो. इसकी एंट्री लिखो. Therefore, गुडविल अकाउंट डेबिट. हम गुडविल रेज करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ विजय शेयर. वैसे भी हमें पूरा क्वेश्चन करना ही नहीं है, हमें खाली विजय का शेयर ढूंढना है. विजय का टोटल कितना कैपिटल, फाइनल कैपिटल वो ढूंढना है. 6,000 टू विजय's कैपिटल. टू विजय's कैपिटल. ठीक है, ये फर्स्ट आ गया. टू विजय's कैपिटल 6,000. ठीक है, लिखो जल्दी लिखो. फिर सेकंड वर्क की नोट करनी है. फिर सेकंड वर्क की नोट करनी है जिसमें हमें क्या करना है, राइट? हमें क्या करना है इन द सेकंड वर्क की नोट? हमें करना है, राइट, हमें करना है कैलकुलेशन फॉर 4 months प्रॉफिट. कैलकुलेशन फॉर 4 months प्रॉफिट. कैलकुलेशन फॉर 4 months प्रॉफिट. Calculation of 4 months profit. करो. Calculation of 4 months profit.
screen. एक सेकंड. नाउ आई कैन शेयर. ठीक है, ध्यान देना. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ विजय शेयर in profits. Calculation of Vijay share in profit. कैलकुलेशन ऑफ विजय शेयर इन प्रॉफिट. मैं एक्सेल यूज करता हूँ, थोड़ा नॉट फेसिंग नेटवर्क कंफर्टेबल नहीं है. ठीक है, एक्सेल यूज करता हूँ. ठीक है, लेट मी ओपन द एक्सेल. ओके, नाउ आई कैन शेयर द एक्सेल एज वेल. ध्यान देना, मैं आईपैड की स्क्रीन में एक्सेल शेयर कर रहा हूं. ठीक है, हाँ, ये मेरी फर्स्ट वर्किंग नोट मैंने की. मैंने फर्स्ट वर्किंग नोट की, अब मुझे सेकंड वर्किंग नोट करनी है. कोई बच्चे बहुत आगे रहेंगे मेरे, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम था. ठीक है, ध्यान देना. सो वर्किंग नोट नंबर 2 अब एकदम प्रॉपर रहेगा. सो वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ विजय शेयर, कैलकुलेशन ऑफ विजय शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2000. क्या है 1 अप्रैल 2000? क्या है, कोई मुझे बोलेगा? 1 अप्रैल राइट 2019 टू 1 अगस्त 2019. ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ विजय शेयर इन द प्रॉफिट्स. तो हम 3 स्टेप में आंसर निकालेंगे. ध्यान देना. स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1, हम स्टेप 1 में निकालेंगे बेस प्रॉफिट. व्हाट आर द बेस प्रॉफिट्स? बेस प्रॉफिट्स आर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है therefore right average profit is equal to average profits for profit, average profit for goodwill. ठीक है,
एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल इज 4 years, एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट इज 3 years इज इक्वल टू, तो ले लो कैलकुलेटर पे, दे हैव गिवन यू लास्ट 4 ईयर, लास्ट 3 ईयर चाहिए ना, तो दे आर 24,000, सेकंड ईयर ले लो प्लस थर्ड ईयर ले लो 14,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3, therefore एवरेज प्रॉफिट विल बी, कोई बोलेगा कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट, 24 प्लस 14, 24 प्लस 14 48, सॉरी 38, 38 प्लस 2, 38 प्लस 2 40, 40 प्लस 20 60, 60,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट इज 20,000, एवरेज प्रॉफिट इज 20,000, चेक करो बराबर है क्या 20,000, एवरेज प्रॉफिट इज 20,000, या परफेक्ट, सो एवरेज प्रॉफिट इज 20,000 बराबर। आगे ध्यान देना, अब क्या करना है हमें, एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमें, यस। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट पूरे साल के आगे, मतलब हम ऐसे मानते हैं कि फर्म ऑन एन एवरेज अर्न्स 20,000 पर एनम, हम क्या मानते हैं कि वी अर्न ऑन एन एवरेज 20,000, ये हम ईयरली कमाते हैं ऑन एन एवरेज, हम ईयरली ऑन एन एवरेज 20,000 कमाते हैं, बट पार्टनर वाज नॉट देयर फॉर 12 months, he was there only for 4 months, so right, can I say 20,000 proportionate profit is equal to 20,000 multiplied by 4 divided by 12, so your proportionate profit is equal to कितना आएगा proportionate profit, 1/3, कितना आएगा, एनीवन, proportionate profit 6667, अच्छा 6,667, एंड उसमें राइट विजय शेयर, अब थर्ड ले लो, स्टेप 3, स्टेप 3 विजय शेयर, विजय शेयर इज इक्वल टू 6667 में विजय का शेयर है 1 डिवाइडेड बाय 3, therefore विजय शेयर इज 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 6 बराबर 6 है, तो विजय शेयर इज 1,111, विजय शेयर, इसकी एंट्री लिखो, एवरीवन हैज टू राइट द एंट्री। P&L suspense account debit, P&L suspense account debit, suspense account debit to right Vijay Capital, $1,111 बराबर, ये आ गया आपका। चलो अब हम विजय कैपिटल ढूंढना है, चलो विजय कैपिटल, विजय कैपिटल मैं यहां पे कर रहा हूं, विजय कैपिटल, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना पर्टिकुलर्स रुपीज, particulars rupees, so ठीक है, ये आ गया आपका विजय कैपिटल। क्रेडिट पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैपिटल था उसका, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका कैपिटल था, विजय का कैपिटल था 20,000, विजय का कैपिटल था 20,000, कितना कैपिटल था 20,000, रिजर्व फंड में उसका शेयर बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितने के रिजर्व फंड्स थे, 36,000 के रिजर्व फंड्स थे, कितने के थे 36,000, सो 36,000 में उसका 1/6, सो 36,000 में उसका 1/6,
6000। हमें उसको प्रॉफिट में शेयर दे बाय गुडविल में शेयर देना है। गुडविल में हमें उसको कितना देना है? 6000 देना है। हमने ढूंढा था 6000 देना है गुडविल में। बाय P&L सस्पेंस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हमें प्रॉफिट में उसको कितना देना है? 1111। कितना देना है? 1111। ठीक है। अच्छा, इसके सिवा क्या क्या है? इसके सिवा क्या क्या है? लेट मी चेक। हाँ, इसके सिवा हमें उसको रिवैल्यूएशन में देना है, तो रिवैल्यूएशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 निकाल रहा हूं, ध्यान देना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, विजय शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस लिखो। विजय शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ विजय शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो हम लिखेंगे, ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं, देखो। राइट, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट क्या क्या है? रुपीज, ठीक है। और नीचे लिखूंगा लॉस वाले आइटम्स क्या है? रुपीज। या ये लिखने की जरूरत नहीं, रुपीज एक ही बार। या राइट, प्रॉफिट है तो प्लस में लिखेंगे, लॉस है तो निगेटिव में लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, ध्यान देना। फर्स्ट उन्होंने बोला एसेट्स आर रिवैल्यूड एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग को 88,000 करना है। लैंड एंड बिल्ड 80,000 की, उसको 88,000 करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रॉफिट है, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितने का प्रॉफिट है? 8,000 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 8,000 का। सो 88,000 करना है, माइनस 80,000 है। सो प्रॉफिट है तो प्लस में लिखेंगे 8,000 का प्रॉफिट। उसके बाद मोटर लॉरी को 36,000 करना है, 40,000 से 36,000 करना है मोटर लॉरी, ठीक है। मेरे बुक्स में वो 40,000 है, मुझे उसको 36,000 करना है, मतलब वहां पे मेरा 4,000 का लॉस है। लॉस को मैं निगेटिव में लिखूंगा, आगे। फिर उन्होंने बोला है फर्नीचर को 34,000 करना है, फर्नीचर 36 का है, 34 करना है, तो उस पर भी लॉस है। फर्नीचर मेरे बुक्स में वो 36,000 का है, मुझे उसको 34,000 पे लेके जाना है, तो 2,000 का डिप्रिसिएशन देना है, 2,000 का लॉस है। एंड एडजस्टमेंट 2 में लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड्स, सो आरडीडी, ठीक है। अभी मेरा आरडीडी कितना है? 4,000 का आरडीडी है, मुझे उसको जीरो करना है, मुझे उसको कितना करना है? जीरो। तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया। डिक्रीज इन आरडीडी इज प्रॉफिट। तो आपका टोटल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है 6,000, आपका टोटल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है 6,000, ठीक है। हमें रिवैल्यूएशन टोटल प्रॉफिट हुआ है 6,000। दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं किया, मैंने प्लस माइनस में किया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें विजय का शेयर, विजय शेयर 6,000 में उसका 1/6 है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, विजय को देना पड़ेगा बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट है तो ऐड करना होगा, राइट, प्रॉफिट है तो ऐड करना होगा, बाय रिवैल्यूएशन इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट। हमें उसको सैलरी देनी है, कुछ सैलरी देनी डिसाइड हुआ है क्या? नहीं। हमें कुछ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या? नहीं। उसने कुछ ड्राइंग्स की क्या उस पीरियड में? नहीं। उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है क्या? कुछ नहीं, ठीक है। तो विजय जो भी है उसके लीगल एग्रेस मिलेगा, विजय एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, हमें उसको 30 कितना पेड करना है? 33,111
हम उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे 34,111 विजय। अच्छा, किसी का डाउट है क्या यहां तक प्लीज? मुझे थोड़ा पता है मैं एक्सेल पे आज सॉल्व कर रहा हूं, बट स्टिल ठीक है। किसी का डाउट है क्या? अब नीचे लिख लेना, हमें उसके लोन वाले को कितना पे करना है? 34,111। अब लिख लेना मैं क्या बोल रहा हूं। ये मैं चीजें आपको एडिशनली सिखा रहा हूं, ध्यान देना, लिख लेना, ठीक है। लोन एज ऑन 1 अगस्त 2019, एग्जीक्यूटिव लोन रुपीज 34,111, ये एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं। सपोज in question it is given that firm partners paid rupees 4,111 at the time of death, and balance is paid after 1 year, ठीक है। क्या हुआ है ध्यान देना, टोटल कितने का लोन है? 34,111। उसमें से पे करना है कितना? उसमें से पे करना है 4,111, ठीक है। उसमें से पे करना है 4,111, मतलब कितने का लोन बाकी रहेगा? रे बोलो, कितने का लोन बाकी रहेगा एवरीवन? ठीक है, हाँ, मोटर लॉरी मतलब ही मोटर कार, ठीक है। आगे 30,000 लोन 30,000 का रहेगा, एंड ये 30,000 कब पे करना है? आफ्टर 1 ईयर। सो ध्यान देना, राइट, शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट, ठीक है, डेट एंड अमाउंट, ठीक है। 1 अगस्त 2019 को हम उसको 4,111 पे करने वाले हैं, ठीक है। एंड एक साल के बाद मतलब 31 जुलाई 2020 को हम 30,000 पे करने वाले हैं, ठीक है। along with interest, suppose at the rate of 12% per annum. Decide why. Along with interest at the rate of 12% per annum, ठीक है। Along with interest at the rate of 12% per annum. So ध्यान देना क्या होगा एवरीवन, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में लिखी है बट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन बना के ले रहा हूं। हमें उसके लोन उसके एग्जीक्यूटिव्स को 34,111 पे करने, और सपोज ऐसे क्वेश्चन मिल कर हमने 4,111 तुरंत पेड कर दिया, तो अभी 30,000 बाकी है। ये 30,000 एक साल के बाद पे करेंगे। कब पे करेंगे? एक साल के बाद। तो बोला है कि हम उसको कितना पे करेंगे, ले लो कैलकुलेटर पे या ओरली देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, राइट। 30,000 पे इंटरेस्ट आएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 30,000 पे, पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 12% के हिसाब से फॉर 12 मंथ्स, 12/12 हम उसको 3,600 इंटरेस्ट देंगे। उसके एग्जीक्यूटिव्स को 30,000 प्लस 3,600 का इंटरेस्ट, ऐसे हम उसको देंगे 33,600 देंगे। हमें इंक्रीज करनी, ध्यान देना। सो लिखो एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट लिखो, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट मैं पहले डेट लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, फिर मैं पर्टिकुलर्स लिख रहा हूं, मैं जानबूझ के रेट लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे आएगी अमाउंट, और ऐसे 3 कॉलम क्रेडिट पे भी। यहां पे आ गया बाय,
विजयस कैपिटल, ये आ गया बाय, तारीख है 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019 को विजय के कैपिटल से कितना आ गया, देखो विजय के कैपिटल में लिखा है आपने, विजय के कैपिटल में डेबिट किया है टू विजय एग्जीक्यूटिव 34,111, तो लोन में कितना आ गया, लोन कितने का बन गया 34,111, हमने उसी दिन पेड किया, हमने उसी दिन पेड किया टू कैश, हमने उसी दिन पेड किया, कितना पेड किया 4,111, 34,111 का लोन है, 4,000 हमने तुरंत पेड किया, एंट्री आ गई लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या एंट्री आ गई लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या एंट्री आ गई लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, अब लोन 30,000 का रहेगा, ये ईयर खत्म होगा, ये कौन सा ईयर है 1920 ईयर है, सो 31 मार्च 20 को ईयर खत्म होगा, 31 मार्च 20 को ईयर खत्म होगा, ध्यान देना 31 मार्च 20 को ईयर खत्म होगा, ठीक है, हमें उसको इंटरेस्ट देना होगा, ईयर खत्म होने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट 30,000 पे 12% फॉर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 9 months, 9 नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 8 months, ईयर खत्म होगा ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोन कितने मंथ्स का हो गया 8 months का हो गया, तो 8 month का इंटरेस्ट 30,000 पे 12% फॉर 8 months, 2,400 का इंटरेस्ट आएगा, सो टोटल लोन कितने का हो गया 31 मार्च पे टोटल लोन दिखेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल लोन दिखेगा 34,111 माइनस 4,111 प्लस इंटरेस्ट 2,400, लोन दिखेगा 32,400, ठीक है, फिर नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020, बाय बैलेंस वो लोन कैरी डाउन होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का लोन रहेगा 34,200, 34,200, फिर लोन रिपे कब होने वाला है 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई को पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट 30,000 लोन अमाउंट थी, मल्टीप्लाई बाय 12% रेट था, मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अगस्त से मार्च का इंटरेस्ट ईयर 1920 में आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई इस 4 मंथ का इंटरेस्ट 2021 में आएगा, 4/12, यहाँ पे 8 मंथ का इंटरेस्ट बुक हो गया 2,400, यहाँ पे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक होगा, सो 30,000 पे 12% फॉर 4 मंथ 1,200, टोटल इंटरेस्ट देखो 2,400 एंड 1,200, टोटल इंटरेस्ट कितना रहेगा, राइट, टोटल इंटरेस्ट रहेगा 3,600, ठीक है, आगे नेक्स्ट, अच्छा ये कितना है मैंने यहाँ पे ब्लिंक लेता हूँ, आगे 30,400, ठीक है, लिंक देता हूँ सिंपल, तो अब लोन कितने का हो गया, अब हम रिपे करेंगे 31 जुलाई को हम रिपे करने जाएंगे टू कैश, टू कैश, कितना रिपे करेंगे 32,400 प्लस 1,200, 30,600 टोटल रिपे करेंगे, ठीक है, और लोन हो जाएगा जीरो, लोन हो जाएगा जीरो, लोन हो गया जीरो, दिस इज एग्जीक्यूटिव अकाउंट फॉर 2019-20, ठीक है, एंड इसको मैंने कंटिन्यू किया एग्जीक्यूटिव अकाउंट फॉर ईयर 2021, चेक करो, ईयर बीच में खत्म होगा ना, तो हमें क्या करना होगा उसको, हमें उसको एग्जैक्टली उसको स्प्लिट करना होगा, लेना
किसी के डाउट से तो पूछो, आई विल टेक योर डाउट्स। 30,600। तो लोन कब बना? 1 अगस्त 19 को लोन बना, 1 अगस्त 19। रीपे कब होने वाला है? 31 जुलाई 20। तो उसके बीच में 31 मार्च आता है, मतलब ईयर खत्म होगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स 1920 में आएंगे, और रिमेनिंग 4 मंथ्स 2021 में आएंगे। ठीक है, तो लोन था 34,111, हमने 4,111 रिपे किया, तो लोन बन गया 30,000 का। उस 30,000 पे, राइट, उस 30,000 पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया अगस्त से मार्च। अगस्त से मार्च का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने अगस्त से मार्च का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर लोन इंक्रीज होके हो गया 30,400, फिर अकाउंट क्लोज होके यहाँ पे ओपन हो गया। फिर यहाँ पे अप्रैल से, राइट, अप्रैल से जुलाई एंड इंटरेस्ट 4 मंथ का कैलकुलेट हो गया, वो आ गया 1,200 एंड 30,300 में। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अब देखोगे ये 1,200 30,000 पे ही है, ना कि 32,400 पे। अगर मैं 32,400 पे इंटरेस्ट लेता हूँ तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हम उसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही देख रहे हैं। तो टोटल हमें रिपे करने 33,600। सो योर बैलेंस विल बी जीरो, विल बी जीरो। क्लियर है? समझा या नहीं समझा? किसी को डाउट है क्या इसमें? प्लीज, किसी को डाउट है? तो एक इंस्टॉलमेंट में रिपे कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें ही अब थोड़ा चेंज करेंगे, लिखो लिखो। ठीक है, ये लोन अकाउंट आ गया, मैंने जानबूझ के सिखाया आपको ये चीज आगे। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान देना। अब मैं थोड़ा इसमें थोड़ा और मिर्च मसाला डालता हूं, ध्यान देना। एग्जीक्यूटिव लोन एज ऑन 1 अगस्त 2019 कितने का था? ₹30,000, 34,111। Suppose in question it is given that partners pay 4,111 at the time of date and balance is to be paid. Balance is to be paid, right? In balance is to be paid in four equal annual installments. Four equal annual installments starting from, right, 4 equal annual installments along with interest at the rate of 12% per annum. लिखो, दूसरा लिख लेना। सपोज इन a question it is given that partners paid out of that 34,111 4,111 at the time of date, मतलब लोन बनेगा 30,000 का, and balance is to be paid in 4 equal annual installments along with interest at the rate of 12% per annum. ठीक है, देखेंगे। ठीक है, शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट हम 1 अगस्त को ही 4,111 रिपे कर रहे हैं। बैलेंस लोन 30,000 का होगा, वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 जुलाई 20 को आएगा, वो रहेगा 30,000 डिवाइड बाय 4 प्लस इंटरेस्ट, बराबर। सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगा 31 जुलाई 2021, 7,500 प्लस इंटरेस्ट। थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगा 31 जुलाई 2022, 7,500 प्लस इंटरेस्ट। लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा 31 जुलाई 2013, 7,000 प्लस इंटरेस्ट। टोटल रिपे होगा, आप देखो 34,111, 34,111। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट वगैरह ढूंढना है, ध्यान देना। तो मैं टेबल करूंगा, ध्यान देना। ईयर, ठीक है, ईयर
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लाइक दैट। ठीक है, आगे लोन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लोन एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग लोन एट द बिगिनिंग। ठीक है, ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग लोन एट द बिगिनिंग। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग लोन दोनों मिला के, इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट कितने का दोगे? ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने का दोगे? आगे देयरफॉर आउटस्टैंडिंग लोन एट द एंड, आउटस्टैंडिंग लोन एट द एंड, ध्यान देना, ईयर फर्स्ट, ईयर फर्स्ट टोटल आउटस्टैंडिंग लोन 30,000 का था, उस पे हमें पूरे साल का 12% इंटरेस्ट, 12/12 इंटरेस्ट लगेगा 3,600, तो 30,000 प्लस 3,600 टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 33,600। उसमें से हम रिपे करने वाले 7,500 प्लस इंटरेस्ट 3,600, 11,100 पे करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11,100 का रहेगा। सो 33,600 में से 11,100 पे करने के बाद आपके पास 22,500 बचेंगे। कितने बचेंगे? 22,500। अब सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, उसके बिगिनिंग में आएगा फर्स्ट ईयर का एंड 22,500, उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 22,500 पे 12% इंटरेस्ट है लोन पे फॉर द एंटायर ईयर 12/12 2,600। ठीक है, टोटल हमें रिपे करना है 22,500। हम रिपे करने वाले 7,500 इंस्टॉलमेंट अमाउंट, 7,500 प्लस इंटरेस्ट 2,700, टोटल रिपे करेंगे 10,200। तो बचेगा कितना? 25,200 में से 10,200 गया तो 15,000 बाकी है। सो थर्ड ईयर के ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग आएगा 15,000। उस 15,000 पे हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देगा होगा 12% फॉर एंटायर ईयर 12/12 1,800। तो टोटल आउटस्टैंडिंग होगा 15,000 प्लस 1,800 16,800। इसमें से हम 7,500 प्लस इंटरेस्ट रिपे करने वाले 1,800। सो 9,300 का रिपेमेंट होगा। 16,800 में से 9,800 रिपे होने के बाद 7,500 बचेगा। फोर्थ ईयर स्टार्ट होगा, उसके बिगिनिंग में 7,500 लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 12% फॉर 12/12 900 रुपीज। सो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग होगा हो जाएगा 8,400। आपको रिपे करना है इंस्टॉलमेंट ऑफ 7,500 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 8,400। तो टोटल कितना बाकी रहेगा? 0। लोन क्लियर हो गया। ऐसे लोन क्लियर होगा, ऐसे लोन क्लियर होगा। ऐसे लोन क्लियर होगा, लिखो। ऐसे लोन क्लियर होगा, लिखो। किसी को डाउट है इसमें? एनीवन इज डाउट? इसमें किसी का डाउट है क्या?
ठीक है, किसी को डाउट है रीपेमेंट का? किसी को डाउट है कि रीपेमेंट का नहीं समझा ऐसे कोई चीज है क्या रीपेमेंट? मैं एंट्रीज लिखता हूं, ध्यान देना, एंट्रीज, ध्यान देना, एंट्रीज एवरीवन। सबसे पहले ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूं, पहले मुझे लिखने दो बाद में आप लिखो, पहले मुझे लिखने दो बाद में आप लिखना, ठीक है? पहले कैपिटल से लोन बन गया, राइट? तो एंट्री आ गई विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट? विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है? कितना? विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये कौन से तारीख पे लोन आएगी, एंट्री आएगी? ये एंट्री आएगी 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019 को एंट्री आएगी 34,111, 34,111 बीइंग कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। क्या आएगा? बीइंग कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ठीक है? फिर हमने उसी दिन थोड़ा लोन रिपे भी किया, तो एंट्री आएगी एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। यू रिपेड 4,111, 4,111 है, सॉरी ये शायद से, ठीक है? अगर गलत है तो आप समझ लेना उतना मेरा, ठीक है? 4,111 आपने रिपेड किया उसी दिन। अब ये फर्स्ट ईयर होगा, ये आपका फर्स्ट ईयर होगा 2019-20, बराबर? फर्स्ट ईयर होगा 1920। ये ईयर खत्म हो जाएगा 31 अगस्त, 31 मार्च 2020 को ये खत्म हो जाएगा, राइट? 31 मार्च 2020 को उस दिन इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन में ऐड किया जाएगा, ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन लायबिलिटी, लोन में ऐड किया जाएगा। कितना इंटरेस्ट है आप देख सकते हो ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टोटल इंटरेस्ट कितना है 3,600, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टोटल इंटरेस्ट कितना है 3,600, उसमें से ये कौन से पीरियड का है? फर्स्ट ईयर कहां से कहां तक है? फर्स्ट ईयर है 1 अगस्त, ध्यान देना, 1 अगस्त 2019 टू 31 जुलाई 2020, ये फर्स्ट ईयर है। फिर सेकंड ईयर क्या है? 1 अगस्त 2020 टू 31 जुलाई 2021। थर्ड ईयर कौन सा है? 1 अगस्त 2021 टू 31 जुलाई 2022, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का ईयर है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का ईयर क्या है? 1 अगस्त 2020 टू 31 जुलाई 2020, राइट? ठीक है, ये ऐसे लोन रिपे होने वाला है। सो दिस इज फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू। मतलब अगर आप देखते हो ये 3,600 ये पूरे एक साल का है, 3,600 पूरे एक साल का है, मतलब 12 मंथ का है। 3,600 पूरे 12 मंथ का है, मतलब ये पर मंथ इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट पर मंथ, पर मंथ 300 रुपीज। उसमें से अगस्त से मार्च 8 मंथ्स आते हैं। सो अगस्त से मार्च, अगस्त से मार्च 8 मंथ्स आते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर में आता है अप्रैल, मई, अप्रैल में जून, जुलाई। सो अब देखो 3,600 का बाइफर्केशन रहेगा 8 मंथ्स एंड 4 मंथ्स के बीच में, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 4, हो गया टोटल 3,600। सो ध्यान देना क्या होगा, जो आपका पूरा इंटरेस्ट है, कौन से पेड़ का इंटरेस्ट है? 1 अगस्त 19, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, 1 अगस्त 19 से डेट हो गई 1 अगस्त 19 को, तो वहां से एक साल के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। मतलब कब पे करना है? 31 जुलाई 2021। उस पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है 3,600।
तो उसके बीच में ईयर खत्म होता है, अकाउंटिंग ईयर बीच में खत्म होता है। 1 अगस्त 19 से 31 जुलाई 20 के बीच में 31 मार्च आता है। तो उस इंटरेस्ट को स्प्लिट किया मैंने 2400 एंड 1200। अब एंट्री क्या आएगी ध्यान देना, राइट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 8 मंथ का इंटरेस्ट 2400, 8 मंथ का इंटरेस्ट 2400, ठीक है। फिर हम इंटरेस्ट P&L में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट को P&L में ट्रांसफर किया जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। कितना 2400, ठीक है। फिर कौन सा ईयर खत्म हो गया, 2019-20 खत्म हो गया। अब कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, 2020-21, राइट। अब डेट ऑफ रिपेमेंट 31 जुलाई 2020 को इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। 4 मंथ्स का इंटरेस्ट, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ का इंटरेस्ट 1200 आया था, 1200, ठीक है। और अब हम लोन रिपे करेंगे। कितना रिपे होने वाला है लोन, हमने ऊपर ढूंढा है। कितना रिपे होने वाला है लोन, 11,100। कितना रिपे होने वाला है, 11,100। अब एंट्री आएगी, ध्यान देना, एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री आएगी। एग्जीक्यूटिव्स टू कैश सेम डे पे 11,100, 11,100, उसमें क्या क्या आ गया, 7,500 आ गया, प्लस ये 2,400 इंटरेस्ट और ये 1,200 इंटरेस्ट, ठीक है। आगे अब पूरा साल, अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, जुलाई खत्म, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च आ गया 31 मार्च, 31 मार्च 2021 आ गया, ईयर खत्म होने पे। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट की एंट्री। अच्छा 2021 में कितना इंटरेस्ट है, 2021 में कितना इंटरेस्ट है टोटल, 2021 में वो जो लोन का ईयर है 2021, उसका इंटरेस्ट कितना है 2,700। ये पूरे साल का है, उसके बीच में अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, तो पर मंथ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 2,700 डिवाइडेड बाय 12। एक मंथ का इंटरेस्ट 225 होगा, तो 8 मंथ का कितना, और रिमेनिंग 4 मंथ्स का कितना, ऐसे वो बाइफरकेट हो जाएगा 2,700। सो दिसंबर एंड मार्च एंड पे हम 1,800 बुक करेंगे, 1,800 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन 1,800, 1,800, ठीक है। इंटरेस्ट P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी। इन P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,800, 1,800, ठीक है, 1,800 एंड 1,800, ठीक है। खाली यही नहीं आएगा, इंटरेस्ट ए वाला भी क्लोज करना होगा। देखो इस साल में 2 इंटरेस्ट रहेंगे, 2021 में 2 इंटरेस्ट P&L में जाएंगे, एक पहले 4 मंथ का इंटरेस्ट अप्रैल में जून जुलाई एंड फिर अगस्त से मार्च का इंटरेस्ट, तो टोटल P&L में जाने वाला है, टोटल P&L में जाने वाला है 1,200 प्लस 1,800, टोटल 3,000 जाएगा। कितना जाएगा 3,000। ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट इस ईयर के P&L में जाएगा, ठीक है, 3,000। आगे अब ईयर स्टार्ट हो गया 2021 टू 2022। फर्स्ट एंट्री 31 जुलाई को आएगी, फर्स्ट एंट्री, राइट, फर्स्ट एंट्री कब आएगी, 31 जुलाई, 31 जुलाई को आएगी। क्या आएगा, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट, एंट्री आएगी इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट। 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया करके रखा था, हमने 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करके रखा था, 900। सो 900, 900, ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट रिपे होगा, इंस्टॉलमेंट रिपे होगा, एंट्री आएगी एग्जीक्यूटिव लोन टू कैश। कितना रिपे होने वाला है, हमने ढूंढा भी था। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का रिपे हो रहा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट रिपे हो रहा है 10,200, 10,200, तो 10,200 का पेमेंट होगा।
10,200 का पेमेंट होगा। ठीक है, अब पेड हो गया। अब डायरेक्टली मार्च एंड पे चलेंगे। 31 मार्च 2022 हमें अब इंटरेस्ट बुक करना होगा। ईयर खत्म हो रहा है तो इंटरेस्ट बुक करेंगे। इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट कौन से पीरियड का बुक करेंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स का करेंगे। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें बाइफरकेट करना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 1800। थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 1800 है, तो पर मंथ इंटरेस्ट रहेगा 150। तो 8 मंथ्स का रहेगा 1200 एंड रिमेनिंग रहेगा 4 मंथ्स का 600। सो 1200 हम इंटरेस्ट बुक करेंगे। 1200। ठीक है, अब हम P&L में ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट। हम P&L में इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे। दो इंटरेस्ट P&L में जाएंगे। एक हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। पहले कौन से ईयर का देख रहे हैं हम? 2021 के P&L में ये 900 रुपए जाएगा और ये 1200 रुपए जाएगा। सो एक 900 रुपए जाएगा और एक 1200, 2100 जाएगा। ठीक है, फिर ईयर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 2022 टू 23। राइट, तो उसमें पहले 31 जुलाई को रीपेमेंट होने वाला है। 31 जुलाई को रीपेमेंट होने वाला है। 31 जुलाई को रीपेमेंट होने वाला है, बट पहले इंटरेस्ट आएगा उसका। 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। सो 22 टू 23 के बीच में जो इंस्टॉलमेंट है, 22 टू 23 के बीच में जो इंस्टॉलमेंट है, हम लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। राइट, उस राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें उसका इंटरेस्ट, ध्यान देना, हमें पहले 4 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक करना है। हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 8 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक किया है। 1200 बुक किया था हमने। रिमेनिंग 600 अब बुक करेंगे। रिमेनिंग 600 बुक करेंगे। ले लो, रिमेनिंग 600 बुक होगा। रिमेनिंग 600 बुक होगा, फिर रिपे होगा। एंट्री वही रिपीट करो। देखो, एग्जीक्यूटिव लोन टू कैश कितने का? थर्ड इंस्टॉलमेंट रिपे हो रहा है ना। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का जा रहा है? देखो, थर्ड इंस्टॉलमेंट जा रहा है 9300। कितना? 9300। 9300। 9300। ठीक है, ये रिपेड हो गया। अब ध्यान देना। ठीक है, अब रिपेड होने के बाद डायरेक्टली 31 मार्च पे 23, 31 मार्च 23 अब हमें फिर से इंटरेस्ट बुक करना होगा बिकॉज ईयर खत्म हुआ है। हम कहां से कहां तक इंटरेस्ट बुक करेंगे? हमने यहाँ पे आप देख सकते हो 31 जुलाई तक किया है, 22 तक हुआ है, मतलब अगस्त 22 से मार्च 23 तक, अगेन 8 मंथ्स का। अगेन 8 मंथ्स का। देखो, ये लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है, तो हम इसको, टोटल इंटरेस्ट है 900, पूरे साल का 900 रहेगा। वो साल 2 इसमें डिवाइड हुआ है। 1 लोन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 अकाउंटिंग ईयर्स, डिवाइड बाय 12, पर मंथ 75 है, तो 8 मंथ्स का रहेगा 600 एंड 4 मंथ्स का रहेगा 300। ऐसे 900 को डिवाइड होगा। सो 600 का इंटरेस्ट हम बुक करेंगे। अब 600 का इंटरेस्ट बुक होगा। ठीक है, कितने का इंटरेस्ट बुक होगा? 600 का इंटरेस्ट बुक होगा। ठीक है, आगे, यस, आगे 600 का इंटरेस्ट बुक हो गया। ईयर खत्म हो गया। इंटरेस्ट P&L में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट P&L में ट्रांसफर करेंगे। कौन से ईयर में कर रहे हैं हम? 2022 टू 23। कितना P&L में इंटरेस्ट जाएगा? दो चीजें जाएगी, ये 600 एंड ये 600, ऐसे टोटल कितना जाएगा? 1200 P&L में गया। ठीक है, ये ईयर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया 2023 टू 24। उसमें पहले 31 सितंबर को हमें रीपे करना है। 2023 हम रीपे करने जाएंगे, बट पहले हमें उसका इंटरेस्ट बुक करना होगा। हमें पहले इंटरेस्ट बुक करना होगा 4 मंथ्स का।
8 मंथ्स का बुक कर चुके हो, 3-4 मंथ्स का बाकी है, 600 रुपए बुक हो चुका था, बाकी कितना है, बाकी है राइट, बाकी है 300 रुपए, 300 बुक करेंगे, 300 रुपए, ठीक है। एंड फिर हम रीपे करेंगे, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो कुछ भी है, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने अभी रिसेंटली 9300 का इंस्टॉलमेंट पे किया था, अब हमें 9300 के बाद का कौन सा इंस्टॉलमेंट है, 9300 के बाद 8400 का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और लोन खत्म हो जाएगा। 8400 का इंस्टॉलमेंट होगा, हम पे करेंगे, 8400 का इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। और फिर ईयर खत्म होगा तो हम इंटरेस्ट क्लोज करेंगे 24 में, इंटरेस्ट टू P&L एंट्री आएगी, P&L टू इंटरेस्ट। तो इस ईयर में 2023 एंड 24 में ये 300 रुपीज का इंटरेस्ट क्लोज हो जाएगा। दीज आर द इंक्रीज। सो ध्यान देना इंक्रीज कैसे की मैंने, ध्यान देना मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मेरा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, लोन का ईयर है, लोन का ईयर है अगस्त से सितंबर, लोन का ईयर है अगस्त से जुलाई, अगस्त से जुलाई लोन का ईयर है, बट अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च है। तो ये लोन का जो ईयर है ना, एक इंस्टॉलमेंट 2 ईयर में गिरेगा, 8 मंथ्स वन फर्स्ट ईयर में आएगा, रिमेनिंग 4 मंथ सेकंड ईयर में आएगा। तो मैंने क्या किया ध्यान देना, पहले मैंने 1 अगस्त 19 को लोन अकाउंट ओपन किया, 1 अगस्त 19 को मैंने लोन ओपन किया, कितने का, 30,000 का, कितने का लोन ओपन हो गया, 30,000 का। फिर अगस्त से मार्च उसका इंटरेस्ट 2400, उसका इंटरेस्ट 2400, ध्यान देना राइट। पहले मेरा लोन था 30,000 का, फिर अगस्त से मार्च का इंटरेस्ट 2400, सो लोन हो गया 30,400। फिर क्या किया हमने, हमने और इंटरेस्ट ऐड किया, अप्रैल में जून जुलाई, अप्रैल में 4 मंथ का इंटरेस्ट, लोन हो गया 30,600। हमने रीपेड किया, हमने रीपेड किया कितना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11,100, तो कितने का लोन बचेगा, 22,500। अकाउंटिंग में दो इंटरेस्ट की दो एंट्री आ गई, एक अगस्त से मार्च की एंट्री आ गई और अप्रैल में जून जुलाई की एक एंट्री आ गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इन बिटवीन हमारा ईयर खत्म हो रहा है, इन बिटवीन हमारा क्या खत्म हो रहा है, ईयर खत्म हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हमने ऐसे स्प्लिट करके किया है। अगर आप स्प्लिट करके नहीं करते हो, विदाउट कंसीडरिंग अकाउंटिंग ईयर करते हो तो भी चलेगा, बट मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बट दे हैव गिवन यू एंट्रीज। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप लास्ट पेज पे देखते हो, कहां पे, जहां पे रिटायरमेंट डेट खत्म हुई ना, वहां पे लिखा है उन्होंने एंट्रीज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इन इंस्टॉलमेंट वगैरह, ठीक है, ठीक है। देन ठीक है, सो दिस इज द आंसर। एक सेकंड, ठीक है, आगे लेट मी चेक, लेट मी चेक। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछेंगे, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ठीक है। आगे, why we didn't take 32,400 as a base, नहीं, ये किसका क्वेश्चन है, श्रावणी का, नहीं समझा मुझे, ठीक है, ठीक है। सो ये लोन रिपे करने के अलग अलग लोन होता है रे यार, लोन की इंट्रेस्ट क्या आती है, इंटरेस्ट की इंट्रेस्ट आती है, इंटरेस्ट टू लोन, एंड लोन रिपेमेंट की इंट्रेस्ट है लोन टू कैश, बस। और हमें पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, हमें पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिख लेना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट 10 मिनट्स लिख लेना, ठीक है, लिखो, ठीक से लिख ले, ठीक है, राइट। राम्स लोन अकाउंट is rupees 60,000 to be repaid in 3 equal installment, right, along with interest
at the rate of 10% per annum. Give the entries. मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ, ध्यान देना। मैं वो 31 मार्च वगैरह मैं नहीं लूंगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। या पहले हमें लोन का बाइफर्केशन टेबल करना होगा। लिखो ईयर, ईयर, ध्यान देना, ईयर, फिर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% PA, टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेड, therefore outstanding at end, outstanding at end, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ध्यान देना। और मैं सिखा रहा हूं ना, ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा है, ये याद रखना। बिकॉज लोन लेना, लोन रिपे करना, ये हर बंदे की, आप लाइफ में एक बार तो करोगे, ठीक है। आगे एवरीवन, बच्चे डरते हैं इंटरेस्ट को, मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं। ईयर 1, ठीक है, ईयर 1, ईयर 1 आउटस्टैंडिंग लोन इज 60,000, आउटस्टैंडिंग लोन इज 60,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन इज 60,000, ठीक है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर द एंटायर ईयर, 12/12, 6,000, सो टोटल इंटरेस्ट इज 66। अगर आप एक साल के बाद एक ही झटके में पे करते हो तो आपको 66,000 देना पड़ेगा, बट हम एक झटके में नहीं दे रहे, हम 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे, एक लमसम में नहीं देने वाले, 3 इंस्टॉलमेंट देने वाले। तो हमारा इंस्टॉलमेंट रहेगा 20,000, 20 प्लस इंटरेस्ट विच इज 6,000, बराबर। तो ये पे होने के बाद आउटस्टैंडिंग बचेगा 40,000, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचेगा ना 40। फिर ईयर 2 आएगा, इसका आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इस पे इंटरेस्ट आएगा 40,000 पे, 40,000 पे 10% फॉर द 12/12, वो 1 लिया है एक्सेल ने, 12/12 को 1 लिया, ठीक है। इंटरेस्ट आएगा 4,000, 40 प्लस 4,000, ईयर के एंड में टोटल लोन बन जाएगा 44,000 का। कितने का बन जाएगा, राइट, बन जाएगा 44,000 का। हम रिपे कितने करने वाले, 20,000 प्लस इंटरेस्ट विच इज 4,000। 24,000 रिपे होने के बाद हमारा बचेगा 20,000 का लोन, थर्ड इंस्टॉलमेंट। 20,000 आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट देना होगा 2,000 का, टोटल आउटस्टैंडिंग होगा 22,000 का। हम रिपे करने वाले 20,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2,000 का उस साल का, 22, लोन जीरो हो जाएगा। लोन हो गया जीरो, यस, लोन हो गया जीरो, यस। अब मैं इंटरेस्ट कैसे लिखता हूं, ध्यान देना, मैं बहुत सिंपल तरीके से एंट्री लिखता हूं, ये मेरी आदत है, मैं बहुत अलग ढंग से एंट्री लिखता हूं, ध्यान देना, ठीक है। मैं कैसे एंट्री लिखता हूं, ध्यान देना, मैं यहां पे लिखूंगा, राइट, मैं यहां पे लिखूंगा, मैं यहां पे ईयर लिखूंगा, ईयर 1, फिर मैं लिखूंगा ईयर 2, और मैं लिखूंगा ईयर 3। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, पहले मैं रिपीटेशन अवॉइड करता हूं, कैसे, ध्यान देना, ईयर 3, ध्यान देना खाली। ओके, ध्यान देना, मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी, मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी, हमने लोन, ऐसे समझो कि राम का कैपिटल था, वो लोन में ट्रांसफर हुआ, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट,
अकाउंट डेबिट अकाउंट, ठीक है, राम कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना। देखो मैं कैसे लिखता हूं, जब भी मैं एक्सेल करता हूं ना, मैं एंट्री ऐसे लिखता हूं, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 60,000, किसमें ट्रांसफर किया, किसमें ट्रांसफर किया, टू राम्स लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, 60,000, ये फर्स्ट ईयर में एंट्री आएगी। फिर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट की एंट्री डालेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट है इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 6,000, 6,000 टू राम्स लोन अकाउंट, टू राम्स लोन अकाउंट 6,000, ठीक है। फिर रीपेमेंट करेंगे, राम्स लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट डेबिट, कितना रीपे होने वाला है फर्स्ट ईयर में, इंस्टॉलमेंट 26,000 का है, टू कैश, टू कैश हाउ मच 26, इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर में, कितने का इंटरेस्ट है 6,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 6,000 टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट 6,000, ये फर्स्ट एंट्री आ गई, ये फर्स्ट ईयर की एंट्रीज आ गई। क्या हुआ फर्स्ट ईयर में, ध्यान देना एवरीवन, प्लीज ध्यान देना, हमने कैपिटल को लोन में ट्रांसफर किया, 60,000 का कैपिटल लोन में ट्रांसफर हुआ, इसे समझा मैंने। फिर ये आ जाएगा ओपनिंग में, ये एंट्री आएगी ओपनिंग में, और फिर ये एंट्री आ जाएगी इंस्टॉलमेंट डेट पे, इंस्टॉलमेंट डेट पे, ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट डेट पे हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 6,000, फिर हमने इंस्टॉलमेंट डेट पे इंस्टॉलमेंट पेड किया, और ये ईयर एंड पे आएगी, हमने इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर किया, ठीक है। अब सेकंड ईयर में एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो सेकंड ईयर में नहीं आएगी बिकॉज लोन एक ही बार लिया जाएगा, बट सेकंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, एंट्री रहेगी इंटरेस्ट टू राम लोन, अमाउंट रहेगा 4,000, 4,000, एंट्री वही है, ये कॉलम रिपीट होगा, इसका मतलब ये कॉलम रिपीट होगा। अब क्या करना है आपको, ध्यान देना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 4,000 टू लोन अकाउंट क्रेडिट 4,000, यू हैव टू इग्नोर दिस टू कॉलम्स, आपको इन दोनों कॉलम्स को इग्नोर करके देखना है, इंटरेस्ट टू राम लोन 4,000, 4,000, फिर हम रिपे करेंगे 24,000, 24,000, एंट्री रहेगी राम लोन टू कैश 24, 24, और फिर इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा 4,000 पीएनएल टू राम लोन। तो इससे क्या होता है, ये जो एंट्रीज है कांस्टेंट रह गई मेरी, ये एंट्रीज मुझे 10 बार लिखने की जरूरत नहीं, दीज एंट्रीज आर कॉमन, एवरी ईयर यही एंट्री आने वाली है, मैंने आगे ईयर डाल दिया। थर्ड ईयर में क्या एंट्री आएगी, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, कितने का 2,000, इंटरेस्ट टू लोन 2,000, रीपेमेंट की एंट्री, लोन अकाउंट डेबिट 22,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 22,000, फिर पीएनएल में इंटरेस्ट जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट 2,000 टू इंटरेस्ट 2,000। देखो कितना सिंपल हो गया, सब एंट्रीज बैठ गई यहाँ पे। सो ये एंट्री एक ही बार आएगी, फिर इंटरेस्ट टू लोन एवरी टाइम आएगी, लोन रिपेमेंट की एंट्री एवरी टाइम आएगी, एंड पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री एवरी ईयर आएगी। ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया, दिस इज लाइक ए शॉर्टकट, ये वाला अच्छा मेथड है। मतलब इसमें क्या हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने इसमें ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपका लोन एग्जांपल जैसे हमने पहले देखा था, लोन ईयर इज 1 अगस्त 2019 टू 31 जुलाई 2020 है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है पता है आपका, ये लोन ईयर में 2 अकाउंटिंग ईयर आते हैं, लोन ईयर एक है
बट इसमें अकाउंटिंग ईयर 2 आते हैं। अकाउंटिंग ईयर आता है, एक आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक आता है 1920, राइट, 1920 ईयर आता है, और दूसरा अकाउंटिंग ईयर आता है 2021। इसमें आते 8 मंथ्स और इसमें आते उसके 4 मंथ्स। सो जो इंटरेस्ट रहेगा ना, इंटरेस्ट इस पीरियड का जो इंटरेस्ट रहेगा ना, वो 8:4 में डिवाइड करना होगा, 8:4 में डिवाइड करना होगा, बिकॉज बीच में P&L बनेगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप एकदम एक्यूरेटली इंक्रीज करते हो तो आपको उसको टाइम रेशियो में डिवाइड करो इंटरेस्ट को, एंड फिर हम उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। आगे आई डोंट थिंक दे विल बी आस्किंग इंक्रीज ऑन दिस, बिकॉज एक भी सॉल्व या अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं है, बट उन्होंने दिया था इसलिए मैंने कवर किया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो आगे कितना हुआ है, 5:15 हुआ है, ठीक है। कल मैं मॉर्निंग में लेक्चर रखूंगा, यू विल बी हैविंग लेक्चर एट 7:15 to 8:30 in the morning, 7:15 to 8:30 in the morning, अकाउंट्स लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।